Okay, so very good afternoon, everyone. So today we are going to learn or start the new topic that is related to the space exploration, chapter number 18. So this chapter is basically based on the science, or we can say the space science. So first most important thing about this chapter is, see, we all the scientists are still exploring the thing about the universe. अभी तक हम लोग को इसका जो स्पेशली एक्चुअल रीजन है हाउ द यूनिवर्स क्रिएटेड, इसका अभी तक कुछ भी इस तरह से प्रूफ इस तरह से नहीं मिला है. यह माना जाता है कि ये जो यूनिवर्स है ये एक बिग बैंग थ्योरी से जो है डिस्कवर हुआ है. ठीक है, और इस तरह से कोई एक बड़ा सा जो प्लान मतलब ये है प्लैनेट है उसको टुकड़ा होके जो है अलग अलग प्लैनेट्स इस तरह से बना है. ठीक है, तो इसके बारे में अभी भी हम लोग को सारा प्लैनेट्स के बारे में पता नहीं चला है, और भी इस तरह से बहुत सारे स्टार्स हैं, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में रिसर्च हम लोग करते आ रहे हैं. ठीक है, तो इसका जो शुरुआत हुआ ये कहाँ से हुआ और किस तरह से हम लोग आज का डेट में ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एज लाइक द मोबाइल फोन, एज लाइक टेलीविजन्स, और एज लाइक कम्युनिकेशंस व्हिच व्हाटएवर वी आर डूइंग, or the news which you are getting as like the upcoming disaster, as like कहीं बाढ़ आने वाला है, कहीं इस तरह से ज्यादा बारिश होने वाली है, या वेदर का जो कंडीशंस है उसके भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है. तो कैसे मिलता है, these all things we will learn about in this chapter. Okay, so what this term space exploration means, first let us discuss. Space means सबको पता है, ठीक है. What this term exploration means, in this particular chapter especially we will learn about the space exploration, after then about satellites, and some of the peoples who travel to the outer space. Do you all know who first went to the space? सबसे पहले स्पेस में कौन गया था? Neil Armstrong went to the moon, not to the outer space. I am talking about the outer space of the planet, as like the Earth. Earth के outer space मतलब क्या होता है कि एक Earth का ऑर्बिट्स होता है जिसमें लिविंग कंडीशंस है. उसके अलावा इसके बाहर अगर जाओगे ना, सो there, okay, I am getting answer as like Rakesh Sharma and then Yuri Gargins. We will discuss about these all things also in this particular chapter. I am talking about the not only some people. सबसे पहले आदमी जाने से पहले भी कुछ एनिमल्स हम लोग वहां पे भेजे थे. ठीक है, so I am asking about that. So about those all things also we will learn in this chapter. Okay, first the term exploration means the act of traveling around the space in order to learn something. मतलब कुछ चीज सीखने के लिए, कुछ चीज के सर्च के लिए हम लोग जब स्पेस में जाते हैं, या तो जो अर्थ का आउटर स्पेस है उसमें जब जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन. ओके, सो स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब ये हुआ कि हम लोग को स्पेस की खोज में, और यस, डॉग लाइका इज द करेक्ट आंसर. With that animals first we have sent a dog to check it out the living conditions, कि पहले ही अगर मान लो हम लोग ह्यूमन बींग्स को भेज देंगे तो वहां पे हो सकता है वो सरवाइव नहीं कर पाए और उसका डेथ हो जाए. तो ये चेक करने के लिए कि कितना देर तक या वहां पे लिविंग कंडीशंस क्या है, किस तरह से हम लोग रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं, वो चेक करने के लिए पहले हम लोग एक डॉग को भेजे थे वहां पे. ठीक है,
यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है हेवन का भी. सो you all might have known also the place where the some religions believe that the god exists, और स्वर्ग जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, that is called heaven. okay, आफ्टर देन हम लोग आते हैं that is the purpose of space exploration mission. why space exploration mission, क्यों हम लोग ऐसा करते हैं? So what are the purpose of space exploration mission? Anyone asking something? किसी को कुछ पूछना है? Please put on mute yourself. What? Abhigyan, put on mute. Yes. So why the exploration mission, space exploration mission is, see, we every time we want to know something new about the universe. Okay, this is not this time. This is the from the beginning we are doing. हम लोग पहले से लेकर के, पहले के जमाने में जब साइंस इतना डेवलप नहीं था, उस समय हम लोग ज्यादा रिलीजन्स पे विश्वास करते थे, और मतलब ज्यादा भगवान वगैरह पे विश्वास करते थे, और वो ये मानते थे कि जैसे कि जब कुछ हो जाता था, सूर्य ग्रहण होता था या चंद्र ग्रहण जब होता था, जब इस तरह से सिचुएशंस आता था, तो क्या बोला जाता था कि वो कोई राक्षस जो है उसको खा गया है, ठीक है. बट जब हम लोग इसके बारे में और डिस्कवर किए, इसके बारे में पता चला, देन वी गॉट टू नो कि नो, दैट वाज नॉट करेक्ट, द थिंग इज ड्यू टू दिस. Okay, so that about that also we will learn in our further chapter. Okay, so basically the basic understand to know about the history of solar system, or know about the basic thing about the solar system. ओके, अभी तक इवन ये भी हम लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग का जो प्लैनेट है इसका एज क्या है, मतलब कब इसके साथ क्या हो सकता है, नो वन कैन से. ओके, तो इवन आप ये भी सोच सकते हो कि हाउ दिस, इवन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ जो है, ये भी कैसे हम लोग का कहीं फ्लोट हो रहा है. ओके, ड्यू टू द ग्रेविटेशन, एक दूसरे का जो ग्रेविटेशन पावर है इसके वजह से वो रोटेट हो रहा है या फ्लोट हो रहा है हवा में, ठीक है. तो ये जो है, दिस कैन बी एनीथिंग हैपन. ओके, so about these all, to minimize these all or to know about these all things, we do space exploration. उसके बाद to expand technology and create new industries. आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे दें, कुछ कंट्रीज अभी इतना डेवलप हो गया है टेक्नोलॉजी, मतलब ये स्पेस एक्सप्लोरेशन करके, कि उसमें अगर कोई अदर कंट्री अटैक भी करे, कोई अदर कंट्री अगर उसमें बम से अटैक करे, तो वो बम को जो है वो ऊपर से ही जो है खत्म कर देंगे. इजराइल जैसा कंट्रीज जो है वो इस तरह से डेवलप हो गया है कि वो इस तरह से डिजाइन करके रखे हैं अपना जो सिस्टम को, कि अगर कोई अदर कंट्री उस पर अटैक करने जाए तो वो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हवा में ही उसको फिनिश कर देगा, ठीक है. तो इस तरह से टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हम लोग जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन करते हैं, ठीक है. इसके बाद आते हैं डॉग लाइका के बारे में. सबसे पहले हम लोग का ये जो एनिमल है इसी को भेजा गया था हम लोग का अर्थ का ऑर्बिट में. अर्थ का ऑर्बिट मतलब ये नहीं होता है, आप लोग जो नील आर्मस्ट्रांग वगैरह का नाम ले रहे हो, दे वेंट टू द मून या तो और अलग अलग जो प्लैनेट है उसमें जो गए हैं, दैट इज डिफरेंट पार्ट. बट आउटर स्पेस मतलब अर्थ का आउटर स्पेस मतलब होता है अर्थ से बाहर, अर्थ में जो भी एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पे लिविंग कंडीशंस मतलब एयर वगैरह है, उसके बाद जहां पे जाओगे ना तो वहां पे आप कुछ बोलोगे तो भी एक दूसरे को नहीं सुनाई देगा, ठीक है. उसके अलावा क्योंकि जो हम लोग बात करते हैं, जो बात मेरा बात आप तक पहुंचता है, दैट इज ड्यू टू द वाइब्रेशन. एंड वाइब्रेशन जो होता है वो एयर के वजह से होता है, और जहां पे एयर नहीं है वहां पे एक दूसरे का बात नहीं सुन पाओगे, मूव नहीं कर पाओगे. जैसे हम लोग चल रहे हैं, ये ग्रेविटी के कारण चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो अर्थ है वो हम लोग को अपनी तरफ खींच रहा है. तो ये अगर वहां पे नहीं होगा तो आप फ्लोट करोगे, वहां पे तैरोगे, ठीक है, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे. तो ये सारे कंडीशंस चेक करने के लिए पहले हम लोग एनिमल्स को भेजे.
वहां पे जीरो ग्रेविटी का मतलब वही होता है कि ग्रेविटी है ही नहीं, आपको जो अर्थ है वो खींचेगा ही नहीं, आप जहां पे है वहीं पे रह जाओगे। ठीक है, अगर एक पत्थर को आप फेंकोगे वो नीचे नहीं जाएगा, वहीं पे स्टेबल रह जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीजों चेक करने के लिए पहले एक डॉग को हम लोग का 3 नवंबर 1957 में स्पेस में भेजा गया, अर्थ का आउटर ऑर्बिट में भेजा गया। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन अप टू हियर? ओके, आफ्टर देन this is the first human who went to the space whose name is यूरी गर्गिन। ओके, तो ये जो है, ये आदमी सबसे पहले जो कि रसिया से थे, ये सबसे पहले हमारा स्पेस में विजिट किए थे। मतलब स्पेस में इन्होंने 108 मिनट तक जो है वो स्पेस में रहे थे। ठीक है, और ये रसिया से है, और ये जो गए थे दैट इज ऑन 12 अप्रैल 1961। तो सबसे पहले हमने एक डॉग को भेजा 1957 में। ठीक है, 57 से लेकर के आप यहाँ पे देख सकते हो 4 साल बाद आदमी जो है गया। ठीक है, 1961 में। ये जो है ये तो रसिया से है। ठीक है, इसके अलावा अगर इंडिया का बात करें तो राकेश शर्मा is one of the Indian Air Force pilot who first went to the space on 3rd April 1984। तो ये आदमी जो है राकेश शर्मा, ये एयरफोर्स में एक पायलट थे। ठीक है, और इन्होंने करीब 8 दिन तक आउटर स्पेस में जो है रह के आए हैं। सो इन 1984 इंडिया से राकेश शर्मा जो है आउटर स्पेस में गए थे। तो यहां पे आउटर स्पेस और मून में कंफ्यूजन नहीं करिए। नील आर्मस्ट्रांग दैट इज वेंट टू द मून, मून इज डिफरेंट एंड अर्थ इज डिफरेंट। अर्थ का जो आउटर स्पेस है दैट इज डिफरेंट। ओके, सो यहां पे नॉर्मली कंफ्यूज हो जाता है, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि डेट कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 3rd अप्रैल 1984 को इन्होंने किया था, ये याद रखना। और जो डॉग था उनको भेजा गया था 1957 में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग इंडियन वुमेन का बात करें तो इंडियन वुमेन में कल्पना चावला जो है, शी इज द वन who went to the space on November 1996। ओके, इसके अलावा इसके बारे में और ज्यादा कुछ आप लोग का बुक में भी नहीं है, तो हम लोग और आगे इसके बारे में नहीं बात करते हैं। और स्पेशली जो सैटेलाइट के बारे में है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है। Space exploration is all about many astronauts have been sent to the space mission for the exploration। मतलब अभी तक अभी भी इस तरह से मिशंस है जिसमें हम लोग स्पेस में विजिट करते हैं और इस कुछ सर्च करने के लिए, क्योंकि सॉरी, अर्थ ही एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा प्लेस है जहां पे ह्यूमन बीइंग जो है वो उस तरह का लिविंग कंडीशंस है। और आप देख सकते हो हमारा यूनिवर्स जो है उसमें कितना सारा इस तरह का प्लैनेट है। ठीक है, और अगर इस तरह से हम लोग और भी बहुत सारा प्लैनेट को मिक्स कर लें तो एक गैलेक्सी का फॉर्म होता है। तो वो गैलेक्सी में अभी तक कोई भी नहीं जा पाए हैं। तो ये चेक करने के लिए कि सिर्फ अगर अर्थ जैसा प्लेस में हम लोग का इस तरह से इतना इंटेलिजेंट, इस तरह से इतना डेवलप्ड ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं, तो बाकी जो दूसरा प्लैनेट्स है, दूसरा गैलेक्सीज है, उसमें और किस तरह से पीपल्स, किस तरह से डेवलप्ड लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भी फाइंड आउट कभी भी हो सकता है। दैट इज व्हाई वी यूज्ड टू डू द स्पेस एक्सप्लोरेशन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द आउटर स्पेस। इस तरह से आउटर स्पेस दिखता है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट बियॉन्ड द स्काई। ठीक है, ये अगर अर्थ है तो ये गैलेक्सी का शो करता है, दिस लाइक दिस। और ये सारा प्लैनेट्स है, अलग अलग प्लैनेट्स है। ठीक, सारा प्लैनेट्स नहीं दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द व्यू ऑफ आउटर स्पेस। जब स्पेस से बाहर जाओगे तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है,
अगर हम लोग अभी बात करें प्लेनेटेरियम का, प्लेनेटेरियम का मतलब क्या होता है? प्लेनेटेरियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग कभी अगर मौका मिलता है तो विजिट करना या देखना एटलीस्ट वीडियो में जरूर। ये इस तरह का प्लेस होता है जहां पे जिसका एक मतलब लैबोरेटरी जैसा लोकेशंस होता है, जहां पे स्पेस तरह का बनाया हुआ रहता है। आप अगर जाओगे यहाँ पे तो आपको लगेगा कि यू हैव केम टू द स्पेस, आप स्पेस में आ गए हो, ठीक है। तो प्लेटेरियम नॉर्मली यहाँ पे ऐसा कुछ आई डोंट थिंक कि है, ठीक है। ये एक तरह से मानव निर्मित जो है एक इमेजिनरी ये है, स्पेस है। तो नॉर्मली ये स्पेशली हम लोग का प्रैक्टिकल के लिए ही है, बच्चों को विजिट करने के लिए, इसको लर्न करने के लिए अबाउट द प्लैनेट। इस तरह से प्लैनेट डिजाइन किया हुआ रहता है कि आप अगर विजिट करोगे आपको लगेगा कि आप जो ऑलरेडी जो स्पेस में हो, ठीक है। इवन इस तरह का भी प्लेस बनाया हुआ है कि आप वहां पे घुसोगे तो जो है मूव भी नहीं कर पाओगे, आपको जो है सहारा लेना पड़ेगा कोई चीज का, ठीक है। तो इतना भी इस तरह से भी डेवलप जो है लेबोरेटरीज है, और नॉर्मली उस तरह का लेबोरेटरीज में सभी को नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि वहां पे एक्सपेरिमेंट होते रहता है, ठीक है। तो इसको हिंदी में नॉर्मली तारागृह बोला जाता है। तारागृह मतलब जो है इससे टाइप है लोकेशंस वेयर द स्टार्स आर देयर, वेयर द ऑल द प्लैनेट्स आर देयर, ओके, टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। इसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए हम लोग का होता है प्लेटेरियम, ओके। अंडरस्टूड अबाउट प्लेटेरियम एवरीवन? प्लेनेटेरियम, सॉरी, ओके। आफ्टर देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट इज द थिंग विच स्पेशली rotates around the earth, okay, or even if you are talking about earth also moving around the sun, okay. So like this, especially if we are talking about the satellite of earth, अर्थ का क्या है, हमारा दो तरह का सैटेलाइट है। एक तो नेचुरल सैटेलाइट एंड अनदर इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट फ्रॉम द टर्म नेचर यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो प्रकृति का देन है, ये हमने नहीं बनाया है। सो दिस इज द नेचुरल सैटेलाइट। एज लाइक अगर हम लोग मून का बात करें तो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। तो मून जो है ये अर्थ के चारों तरफ राउंड करते हैं, रोटेट करते हैं। सो दैट इज व्हाई मून इज आल्सो ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ, which is artificial, which is not artificial, which is natural satellite. So one is the natural satellite. Everyone understood about the natural satellite, which is not made man-made, which is which is created by nature, which is we have not created anything, okay. अभी नेचुरल सैटेलाइट का अगर बात करें तो वैसा ऑब्जेक्ट जो आउटर स्पेस में मूव करता है, ठीक है। और जैसे कि फॉर मून विच इज नेचुरली ऑकर्ड, विच वी नॉट मेड आर्टिफिशियली, ओके। सो एज लाइक मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ विच इज मूविंग अराउंड इट। आफ्टर देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दिस इज स्पेशली मैन मेड। हम लोग जो है कुछ सैटेलाइट बनाते हैं to search about it, or to take the picture of the planet or the earth or the different conditions of the weather, or to know about the weather condition of a particular place, or for the communication purpose. तो इसमें क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर ह्यूमन मेड सैटेलाइट, and these satellite are sent to the orbit as like मून जैसे रोटेट कर रहा है, ये भी उस तरह से रोटेट करता है अराउंड द अर्थ। जैसे कि अभी अगर हमने यहाँ से एक सैटेलाइट लॉन्च किया तो उसको इस तरह से लॉन्च किया जाता है कि वहां पे उस तरह से सेट हो जाएगा, और जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगा ये भी उसी तरह से रोटेट करते जाएगा, ठीक है। दिस वन, इस तरह का सैटेलाइट जो होता है, दीज आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ओके। और इसको लॉन्च करने के लिए इस तरह से एक रॉकेट यूज किया जाता है। रॉकेट क्या होता है कि ये एक जैसे आप लोग कभी पटाखा अगर दिवाली वगैरह में यूज करते हो तो रॉकेट का भी एक पटाखा आता है, आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है कि पीछे से जब है वो जो फायर है वो इतना स्पीड से निकलता है कि आगे जो है रॉकेट को धकेल देता है, ठीक है। एंड रॉकेट में इस तरह का सैटेलाइट फिक्स किया हुआ रहता है
और जब वो स्पेस में पहुंच जाता है तो वहां से वो अलग हो जाता है, ठीक है। रॉकेट जो है वो रिटर्न आ जाता है या वो छोड़ देता है उसको, और सैटेलाइट वहां पे इस तरह से सेट हो जाता है, ठीक है। और सैटेलाइट का काम क्या होता है? इसका काम होता है बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करना, पिक्चर लेना, वीडियोस लेना, या तो उससे डायरेक्टली वहां से कुछ इंफॉर्मेशन जो है ये ऑब्जर्व करना, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जो आज के डेट में कम्युनिकेशंस करते हैं वो ड्यू टू द पर्टिकुलर सैटेलाइट ओनली, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ओनली, सैटेलाइट के थ्रू पहले हम लोग जो भी बात करते हैं ये सैटेलाइट तक जाता है, उसके बाद सैटेलाइट से होके आपके घर तक आता है, ठीक है। आप जो बात करते हो आपके पास डायरेक्टली सैटेलाइट तक तो नहीं जाता है, वहां से एक जो नेटवर्क होता है, टावर होता है, वहां तक जाता है, वहां से फिर वो जो है सैटेलाइट में जाता है, सैटेलाइट से फिर यहाँ का नेटवर्क में आता है, और यहाँ से नेटवर्क से मेरे पास आता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट चैनल्स को होते हुए हम लोग का जो भी कम्युनिकेशन होता है ये पास होता है। इट इज नॉट ओनली फॉर द ऑडियो, इट इज फॉर द वीडियोज ऑल्सो। टीवी में जो भी दिखाया जाता है वो भी इस तरह से कम्युनिकेशन के लिए इस तरह से प्रोसेस फॉलो होके होता है, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें आर्टिफिशियल सैटेलाइट में भी दो तरह का होता है। एक तो होता है फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, जो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं या न्यूज देखते हैं या इंटरनेट यूज करते हैं। सो ये सारे जो है ये कम्युनिकेशन पर्पस में जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और एक जो होता है दैट इज वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट इज स्पेशली फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेदर कंडीशन ऑफ द आउटर स्पेस। जो भी स्पेस का जो वेदर कंडीशन है उसी से हम लोग प्रेडिक्शन लगाते हैं कि बारिश होने वाली है या कितना टेम्परेचर बढ़ने का चांसेस है, या इस तरह से जो भी वेदर कंडीशंस रहता है ये बताते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हम लोग यूज करते हैं हम लोग का अर्थ में कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जैसे टेलीफोन हो गया, रेडियो था पहले के जमाने में, अभी तो रेडियो ज्यादा यूज नहीं होता है। उसके अलावा टेलीविजन सिग्नल्स जो ट्रांसमिट होता है दैट इज ऑल्सो यूजिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और एक जो होता है वेदर सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट इज बेसिकली फॉर द चेकिंग द वेदर कंडीशन ऑफ द अर्थ। ये जो है जो भी वेदर कंडीशन है ये डे टू डे वेदर कंडीशन टेलीविजन के थ्रू या टेलीविजन को जो है ये डिलीवर करते हैं और फिर वो जो है हम लोग को इन्फॉर्म करते हैं। जैसे कि कहीं का बारिश हो गया, रेनफॉल हो गया, या तो वाइंड का डायरेक्शन, कभी कहीं वाइंड का डायरेक्शन जो है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो भी बहुत नुकसान करता है कोई पर्टिकुलर लोकेशंस का। तो पहले ही अगर अलर्ट कर देगा तो वहां से जो भी पीपल होंगे वो स्केप कर जाएंगे या वो कहीं और मूव कर जाएंगे ताकि वाइंड उनको कुछ नुकसान ना पहुंचाए। क्लाउड का जो मूवमेंट है उसके बारे में ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। काफी सारा नेचुरल डिजास्टर्स भी हो सकता है, जैसे थंडरसंस का है, साइक्लोन्स का है, सुनामीज का है। तो ये सारे चीज कोई एक पर्टिकुलर लोकेशंस में अगर आना रहता है तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है दैट इज ऑल्सो यूज्ड टू गिव बाय वेदर सैटेलाइट, ठीक है। तो फिर से हम लोग सैटेलाइट को एक बार अगर कंक्लूजन करें, सैटेलाइट हम लोग का दो तरह का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल जो है वो नेचर से है, दैट इज नॉट मैन मेड, ओके, एज लाइक मून। उसके बाद आर्टिफिशियल भी हम लोग का दो तरह का है, एक वेदर कंडीशंस के लिए होता है और एक होता है कम्युनिकेशन पर्पस में, ठीक है। ओके, ये इस तरह का वेदर सैटेलाइट होता है। तो इस तरह से देखना, कभी अगर इस तरह से साइक्लोन्स वगैरह आए तो ये जो है इन्फॉर्म कर देता है, अलर्ट कर देता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग का एक इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप स्पेशली वी यूज टू सी द आउटर स्पेस, और मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रहता है उसको सामने देखने के लिए या उसका बड़ा करके देखने के लिए टेलीस्कोप यूज होता है। जो भी स्टार्स है या जो भी इस तरह से मून वगैरह है, जो भी आउटर स्पेस में प्लैनेट है, उसको देखने के लिए जो है टेलीस्कोप का यूज होता है। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो चेक करने के लिए, देखने के लिए टेलीस्कोप यूज होता है। यहाँ पे एक हबल टेलीस्कोप के बारे में आप लोग का बुक में दिया हुआ है, जो कि एक बस के बराबर है। आपका जो स्कूल बस होता है हम लोग का, उतना बड़ा जो है टेलीस्कोप है। और ये जो है, ये टेलीस्कोप हमारा जो भी स्टार है या प्लैनेट है या गैलेक्सीज है, इसका पिक्चर जो है वो इकट्ठा करते हैं, ठीक है। सो टुडे वी आर कीपिंग दैट मच ओनली। इसके अलावा हम लोग और एक क्लास रखेंगे जिसमें इसका रिवीजन के साथ साथ इसके बारे में और भी जो भी इंफॉर्मेशन है दैट वी विल
डिस्कस। ओके, आप लोग स्पेशली इसके बारे में कोशिश करना कुछ वीडियो इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए, क्योंकि वीडियो से आप लोग और अच्छे से समझोगे जब स्पेस रिलेटेड कुछ वीडियोस देखोगे। ठीक है, ओके देन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।